As per report, in 2021, 156 people committed suicide. In 2020, 143 people committed suicide in CAPF. At this time, when people are very eager to find even a petty job, even a job of peon, those who are in a respectable job are committing suicide, then why? That is the main issue. Yes, it is true. People are committing suicide everywhere, every country, every place. In some places, there are more. In some places, there are less. In some places, it is correctly reported. In some places, it is not correctly reported. Sometimes this happens. A Zaban on duty means in the place of his or her duty commits suicide. Sometimes the person goes on leave and commits suicide. As an officer, you are going to be an officer, or some of you are already going through training. Some of you already passed the training and you are an officer. You must know, because in general, suicide is committed by lower personnel, means in the rank of ORs, means other ranks, and subordinate SOs. In general, gazetted officer, there is almost negligible. Then the problem arises. It is due to extra burden of duty, or it is due to their lack of understanding. Yes, it is true. Many times, for example, a top businessman, an IAS officer, an IPS officer, successful entrepreneur, all are committing suicide. But in general, the forces are known for its disciplined life. They are getting training on basis of scientific pattern. In Central Armed Police Forces, training facility is better than a state police. In a state police, I know there is not that much a standard due to lack of resources many times, because too many people are recruited and they are not having facility. But in Central Armed Police Forces, or for example any force, a person is relatively getting good salary, at least at this time. For example, in 2021, 22, at least personnel has basic facility available. Initially, means if we go 20 years back, 30 years back, then even for officers, living places properly was not available. Leave aside Japan. Nowadays, for Japan itself, also, it is a better facility available. Since I have served in CRPF, I am knowing this is true. For example, in my batch, one of the trainee officer committed suicide. That happened, but generally, in officer, it is negligible. So you can be asked question in interview. Also, you can quote in report. Maybe report can be asked, or maybe you can write essay. This was published in The Hindu on 30th March 2022. Means as many as 156 personnel of Central Armed Police Forces took their own life in 2021, the highest in almost a decade, according to information provided by the MHA in the Lok Sabha on Tuesday. ये लोक सभा में present किया गया. There are the CAPFs that comprise various security forces, already you are knowing, are deployed in various internal security and border guarding duties. From 2012, the total number of CAPF personnel who killed themselves stood at 1205. Means समझ सकते हो कि last 10 years में 1205, यानी कि एक
फुल बटालियन का स्ट्रेंथ जो होता है वो इन जनरल 1200 पर्सनल माना जाता है, बट एक्चुअल में जो होते हैं बहुत कम होते हैं, 700 800 ही होते हैं, लेकिन प्रॉपर यदि फुल स्ट्रेंथ 100% स्ट्रेंथ लो तो अप्रॉक्स 1200। द इंसिडेंट सॉ अ शार्प इंक्रीज इन द कोविड-19 पैंडेमिक induced lockdown years with 143 and 156 committing suicide in 2020 and 2021 respectively. From 2012 to 2019 ये नंबर जो है 2012 से लेकर के आपका 2019 तक, यानी कि ये 2012 का 118, 13 में 113, नेक्स्ट 125, 108, 92, 125, 96 एंड 129 रिस्पेक्टिवली। यानी कि 2019 में आपका 129 था, 2018 में आपका 96 था, और ये 2016 में एक तरह से इसमें से लोएस्ट यदि हम देखें तो 2016 में। अब हर एक साल देखो इतने नंबर ऑफ पर्सनल सुसाइड कमिट कर रहे हैं, इसका कहीं न कहीं एक प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं है कि फोर्सेस कोशिश नहीं कर रही है, किसी के लिए भी ऐसे जब आप ऑफिसर बन रहे हो तो ये पॉइंट ऑफ व्यू इन चीज़ों को इस वजह से भी जानना होता है कि कहीं न कहीं जो ऑफिसर होते हैं, ए लॉट ऑफ टाइम होता है, मैंने उस चीज़ को देखा हुआ है, यदि आपके कमांडिंग ऑफिसर अच्छे हैं, तो चीज़ें स्मूथ चलती है। ए लॉट ऑफ टाइम ऑब्वियसली आई विल नॉट टेक नेम एंड ऑल ऑफ एनी पर्सन, बट आई हैव सीन इन सीआर ऑब्वियसली मैं सीआरपीएफ में था, आई वाज़ इन सीआरपीएफ, सो आई एम नोइंग अबाउट सीआरपीएफ, बहुत सारी चीज़ें इंटरनल जो भी उनकी वर्किंग या चीज़ें हैं, तो कहीं न कहीं कमांडिंग ऑफिसर पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि थिंग्स है कि यस, आप जब फ़ोर्स में गए हो, तो नो डाउट ए लॉट ऑफ टाइम जो बहुत चैलेंजिंग आते हैं, समस्याएँ आती हैं। एवरीवन इज़ नॉट गोइंग टू सैक्रिफाइस हिज और हर लाइफ फॉर नेशन। मेजॉरिटी ऑफ पीपल ये होते हैं, दिस इज़ ट्रू। आप इस चीज़ को इन ग्राउंड रियलिटी यही ट्रू है कि हर कोई जो भी है, एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो जाते हैं वो एज ए जॉब के लिए जाते हैं, एज ए अपने फैमिली के लिए जाते हैं, जॉब सिक्योरिटी की। यस, अब मैं एक सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी मिल गई है, समाज में हमारी रिस्पेक्ट होगी, सैलरी मिलेगी, ये सारी चीजें फैसिलिटी मिलेगी, मान के चलो जब वर्दी पहन करके आएंगे तो एक गौरवान्वित महसूस करेंगे। लेकिन वही एक पर्सन, वही जवान क्यों अपनी लाइफ को एंड करने की कोशिश करता है? इनफैक्ट देखो, यदि आप फिलोसफिकल देखो या सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो लाइफ अपने आप में एक ब्यूटीफुल थिंग्स है। यदि आप उसको एंजॉय करने की कोशिश करते हो प्रॉपर तरीका से, तो अ लॉट ऑफ टाइम आप में से बहुत सारे देखोगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ कि एक तरह से उनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत बुरा है, या कुछ मैं देखता हूँ, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट थे, वो कांस्टेबल बन गए, कुछ दरोगा बन गए, कुछ और अदर अदर जॉब में भी आए। तो फॉर एग्जांपल जो गैजेटेड ऑफिसर बनना चाहता था, वो कांस्टेबल बन गया। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉब्लम फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी नहीं थी, घर से प्रेशर था, तो वो उस चीज़ को कर लिया। तो कहीं एज़ ए ऑफिसर जब आप बनते हो, तो फॉर एग्जांपल आप असिस्टेंट कमांडेंट होते हो, तो असिस्टेंट कमांडेंट की हैसियत से आप एक कंपनी कमांडर हो इन जनरल बटालियन। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक बटालियन में डिफरेंट सिचुएशन होते हैं सम टाइम। फॉर एग्जांपल जैसे सीआरपीएफ के कोबरा में जो कंपनी कमांडर होते हैं वो डेप्यूटी कमांडेंट होते हैं, बट इन जनरल जीडी बटालियन में जो होते हैं वो आपके असिस्टेंट कमांडेंट कंपनी कमांडर होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपकी एक्चुअल में जो स्ट्रेंथ है, मान के चलो कि 80 पीपल आपके अंदर वर्क कर रहे हैं, इन थ्योरेटिकल आपके अंदर 134 होना चाहिए। तो 134 थ्योरेटिकल है और इन प्रैक्टिकल है जो एनी टाइम आपके अंदर 80 के आसपास होंगे। यदि आप इंडिपेंडेंट चार्ज में हो कंपनी के, तो अब मान के चलो कि यदि आप बटालियन हेडक्वार्टर में हो, तो ऑब्वियसली है कि वहाँ डिफरेंट सिचुएशन होगा, या फिर आप ट्रेनिंग सेंटर में हो तो वहाँ डिफरेंट सिचुएशन होगा। तो जब भी आप ऐसे कंपनी कमांडर होते हो, तो इन जनरल आपके पास बहुत सारे काम होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ एरिया में होता है कि रेगुलर ऑपरेशन में नहीं जाना होता है,
तो ऐसी सिचुएशन में आपको ज़बान के हर एक पर्सन के बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। एन नंबर ऑफ पर्सन हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके क्या इश्यूज़ हैं। ये चीज़ को जब आप एक तरह से ये मानो कि वो ही आपकी फैमिली है, दिस इज़ ऑलवेज़ ट्रू कि मैं देखता हूँ कुछ ऐसे ऑफ़िसर होते हैं जो हाँ, फॉर टाइम बीइंग वो डाँटेंगे कि इडियट कहीं का, ये काम क्यों नहीं किया? ये है सिर्फ़ पैसा लेते हो, इतने बेवकूफ़ हो, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन वही मैं देखता हूँ कि फिर जब उनको ज़रूरत होती है, तो उस चीज़ के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, किसी भी समस्या हो उनके कारण। अब मान के चलो क्या होता है, समटाइम क्या ओवर ड्यूटी फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ ऐसे टाइम आया कि कंटिन्यू ड्यूटी लगाया हुआ है, कुछ ऐसे टाइम देखोगे आया कि वो फैमिली से प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कुछ टाइम पर्सनल लाइफ़ में प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो एटलीस्ट हर के प्रॉपर काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए रेगुलर रूप से। अभी क्या हो रहा है कि इन जनरल है, ये सुविधाएँ हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हर एक ज़बान और या हर एक पर्सनल, हर एक जो पर्सन है, जो यहाँ जॉब कर रहा है, तो वो इम्पोर्टेंट है। और कहीं भी जो फ़ोर्स इनफैक्ट जैसे आप एज़ ए ऑफ़िसर हो, आपके यूनिट में किसी ने सुसाइड कर ली या फ्रैट्रिसाइड कर ली, उसमें इंक्वायरी होगा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये आपके लिए भी टेंस मोमेंट होता है। तो जब हम एज़ ए ऑफ़िसर के तौर पे जाते हैं, तो प्रॉपर तरीक़ा से जानना चाहिए। अब धीरे-धीरे करके आप रहते-रहते वो चीज़ें पता चलने लगी हैं। अब जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं एज़ ए टीचर के हैसियत से लूँ, तो अभी एक तरह से मैं ऑनलाइन में हूँ। ऑनलाइन आपसे कम्युनिकेशन एक तरह से होता है, समटाइम चलो मैं ज़ूम सेशन फ़ॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट के साथ करता हूँ। इन जनरल मैं मौका देता हूँ लोगों को कि जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अब कल के बात था, तो कल में मैंने जो हिमांशु तिवारी हैं, उनके साथ ज़ूम मीटिंग रखा था। तो उसमें मैंने सबको मौका दिया था कि जो भी विलिंग कैंडिडेट हैं, वो अपना नेम दे सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सबको इंडिविजुअली नहीं जानता हूँ। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलो कि अभी 200 के आस-पास ऐसे हैं, जो रेगुलर टच में रहते हैं। तो एट लीस्ट सोचो कि 200 हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ उनकी जो इश्यू होती है, उनको सोल्व करने का। अब पूरे के पूरे को मैं रेगुलर टाइम नहीं दे सकता हूँ या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सपोज़ प्रयागराज, इलाहाबाद में जब कोचिंग स्टार्ट किया था, वहाँ जब वर्क हमने स्टार्ट किया था, तो अभी भी बहुत सारे जो 2017-18 में हमसे पढ़ते थे, वो बहुत सारे अभी भी टच में हैं। कुछ लोग बहुत सारे अब ऑलरेडी जॉब में हैं, बहुत सारे मान के चलो ऑफ़िसर हो गए, कुछ सपोज़ एसआई हो गए, कुछ सपोज़ कांस्टेबल हो गए, कुछ सपोज़ टीचर हो गए, कुछ पीसीएस हो गए। तो बहुत सारे हैं जॉब में के बावजूद भी समटाइम प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो मैसेज करते हैं और समटाइम कॉल की, "यस सर, ये प्रॉब्लम है।" तो हमेशा ये बात का ध्यान रखना चाहिए। इन जनरल देखो थ्योरेटिकल में होता है कि देयर इज़ प्रोविज़न कि आपको रेगुलर रूप से इनफैक्ट जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट भी होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं के हेड आईजी हैं, तो वो आईजी भी एक प्रोग्राम रखा जाता है जिसमें हर कोई अपने-अपने इश्यू को शेयर करेंगे। दरबार उसको एक तरह से कहते हैं कि दरबार लगता है। तो उसमें पूरे देखोगे कि जब हम सीआईटी सिलचर में रहते थे तो ऐसे उन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते थे या फिर जो डिफरेंट ग्रुप का मीटिंग ये रहता था जिसमें हाईएस्ट ऑफ़िसर भी होते थे, वो अपना बोलते थे कि हाँ जी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आइदर आपके खाने से लेकर के कि और जो भी साज़ो-सामान बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्पोर्ट्स वग़ैरह हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाता था। तो कुछ जगह जैसे मैंने देखा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब सीआईआईटी सिलचर में था, तो वहाँ मैंने देखा कि रेगुलर इंटरवल पे ये सारी चीज़ें की जाती थी कि जो हाईएस्ट ऑफ़िसर हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे टाइम में डीआईजी सर हेड हुआ करते थे। तो उसके बाद फिर आईजी उस इंस्टीट्यूट के हेड हो गए। लेकिन जब मैं था तो वहाँ डीआईजी सर हेड हुआ करते थे। तो उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जो कमांडेंट सर थे, वो एट लीस्ट हर वो छोटी-छोटी चीज़ का ध्यान रखते थे। इनफैक्ट डाँटते भी बहुत थे, वो ऑफ़िसर्स को भी डाँटते थे, लेकिन यदि फिर है पार्टी का माहौल है, तो अपने साथ बैठाएँगे कि चलो यहाँ आओ, बैठो, क्या समस्या है, ये बताओ, सब चीज़ ठीक-ठाक चल रहा है, कुछ भी इश्यू हो तो डायरेक्ट समटाइम फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये हुआ मेरे लिए ही छुट्टी का ये इश्यू हुआ, तो मुझे डायरेक्ट छुट्टी पूरा नहीं मिला, तो मुझे ब्रेक करके मिला। तो जब मैं फिर उनके पास गया दोबारा तो बोले, "यार, तुमने मेरे पास क्यों नहीं कॉल किया था?" मैंने बोला, "सर नहीं, प्रॉपर चैनल।" बोले, "यार, प्रॉपर चैनल हर चीज़ को फ़ॉलो नहीं करो, जब तुम्हें ज़रूरत है
तो डायरेक्ट मुझे कर सकते थे। तो ऐसे टाइम आपको ये जानना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एज़ ए इंटरव्यू में जब आप जाओगे तो इस पर चीज़ें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप ऑब्वियसली है अभी आप ऑर्गेनाइज़ेशन में नहीं हो, तो इंटरनल वर्किंग आप नहीं जानते हो, लेकिन ये बेसिक कॉमन ये होना चाहिए कि हर कोई के पास अपनी-अपनी समस्या होती है। एट लीस्ट आप अपने फ्रेंड सर्किल में या अपने फैमिली मेंबर में इस चीज़ को जानते हो कि कोई आदमी सुसाइड कमिट क्यों करता है? वो एक्सट्रीम एक स्टेज है। अपनी ही लाइफ़ को जिस लाइफ़ के लिए आप रेगुलर रूप से 50 एग्ज़ाम दे रहे थे, इधर-उधर रनिंग कर रहे थे, ट्रेन में जनरल कंपार्टमेंट में कभी ट्रैवल करना पड़ा, कभी बस में खड़ा होकर के जाना पड़ा, लेकिन किसी ढंग से आपने जॉब प्राप्त किया, आपने प्रॉपर 1 ईयर का ट्रेनिंग किया, उसके बाद आपने सपोज़ बहुत सारे हैं, जैसे जो मैरिड हैं, जिनके बहुत सारे ऐसे होते हैं इसमें जिनके कि बच्चे हैं, बच्चे शायद अब अच्छी जगह पढ़ने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ जैसे टाइम रखो या फिर जैसे स्पोर्ट्स रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह ये करवाना ताकि वो टीम स्पिरिट डेवलप कर पाएँ, ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती है। रेगुलर रूप से जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराते हो, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में क्या होता है, एक टीम स्पिरिट डेवलप होता है कि हाँ, हमें जीतना है, हमें खेल रहे हैं तो जीतना है, कोऑर्डिनेशन रखना है। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलो काउंसलिंग का 1 टू 1 काउंसलिंग जैसे अब ऑब्वियसली बात है डीआईजी और आईजी और एडीजी लेवल के ऑफिसर सबसे पर्सनल 1 टू 1 नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो ग्रुप में कर सकते हैं। लेकिन जो उनसे जैसे आप मान के चलो असिस्टेंट कमांडेंट होते हो, तो असिस्टेंट कमांडेंट एक तरह से गेस्टेड ऑफिसर में लोएस्ट रैंक में आप हो। तो आप डायरेक्ट कंपनी के इंचार्ज हो, तो वहाँ आपको 1 टू 1 ये रेगुलर रूप से करना चाहिए। फिर ज़रूरत यदि होता है तो आप हायर अथॉरिटी को दो कि बीच में जैसे काउंसलर वगैरह होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो उनका सेशन ये कराया जाए और हर का जो इंटरेस्ट देखा जाए। किसी को कभी-कभी जैसे क्या है कि ठीक है कोई छोटी-सी कॉम्पिटिशन टाइप का कराया जाए, उसमें से देखा बहुत सारा निकल कर के आता है कि इसकी क्या पर्सनैलिटी है, किस ढंग से वर्क कर रहा है। जैसे मैं जितने टाइम रहा तो मैंने देखा कि बहुत सारे जो जवान होते हैं उनके छोटे-छोटे इश्यू होते हैं। यदि आप उनसे शेयर करना चाहते हो, उनसे शेयर करते हो तो बहुत अच्छा उनको भी फ़ील होता है। जैसे मैं जब सिलचर में था तो मुझे क्लासेस लेने के लिए बोला जाता था बहुत सारे इश्यू पे। तो उसमें से हम बहुत लोगों से फिर एज़ ए पर्सनल रूप से भी बात करते थे। मैं उस टाइम में एज़ ए वो जो होता है कि उस ऑफिसर और वो बॉन्डिंग नहीं, एक मैं एक तरह से इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीज़ों को रखता था कि सब लोग अपना शेयर कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट इमेजिन करो कि हम लोग आर-एन-डी ब्रांच में रहते थे, तो वहाँ जो भी प्रिंटर और सारी चीज़ें सुविधाएँ उपलब्ध थी। तो एक बार सर ने ऐसे ही बोला कि रंजीत साहब और सोलोमन साहब मेरे साथ थे। तो बोले कि जिनका भी फॉर एग्ज़ाम्पल आधार कार्ड में इश्यू है, वो इनसे संपर्क करो। अब बहुत सारे लोग आ गए कि उन्होंने लगा कि मैं बनाऊँगा। मैंने बोला नहीं, देखो जिनका बना हुआ है, जिनको प्रॉब्लम है, उनको हम प्रिंट आउट करके दे सकते हैं। तो उसके बाद हमने देखा कि कई लोगों को जो आपका फ़ोटो वाला एक्चुअली हार्ड जो पेपर होता है, फ़ोटोग्राफ़ी वाला पेपर, उस पर हमने उन लोगों को प्रिंट करके दिलवा दिया। तो वो लोग काफ़ी खुश हुए। उसके बाद फिर मैं देख रहा हूँ कि जब मिलते हैं मिल रहे थे, तो वो बहुत खुशी से मिलते थे। या कुछ लोगों को ये मैं कर देता था कि चलो अच्छा बोले सर इंटरनेट नहीं प्रॉपर तरीका से चूँकि बहुत सारे कैंपस बहुत जगह होते हैं ना, तो वहाँ इंटरनेट प्रॉपर तरीका से वर्क नहीं करता। या फिर बहुत सारे जवान होते हैं, उनको समस्या होती थी। तो हम लोग चूँकि आर-एन-डी ब्रांच में होते थे, तो अपने पास बहुत खाली टाइम होता था, तो सम टाइम कुछ होते थे इनफैक्ट एसआई वगैरह भी कुछ होते थे, तो बोलते थे सर थोड़ा-सा टिकट काट देंगे, ये मेरा कार्ड है और ये। तो उनको मैं ये वो चीज़ कर देता था कि हाँ, चलो ये कर दिया या कोई जवान है, उसका कुछ इश्यू है लिखने में या उस ढंग से, तो वो चीज़ कर देते थे, तो काफ़ी खुश रहते थे वो चीज़ को। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि आप ऑफ़िसर हो यस ठीक है, ड्यूटी के तौर पे आप ऑफ़िसर हैं, लेकिन जब बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, तो उसमें आप पर्सन के तौर पे देखो। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ कंधे पे हाथ रख कर के बोलोगे कि चल यार अपन लोग आज व्हिस्की पीते हैं, नहीं, आप वो चीज़ नहीं करोगे, देयर इज़ हायरार्की है। लेकिन जो स्मॉल-स्मॉल इश्यूज़ हैं, उनको करने की कोशिश करने पे ये चीज़ें कम की जा सकती है और इसमें एक ऐसा नहीं है कि एमएचए कोई प्लान बना रही है और वो जब तक ग्राउंड लेवल पे जो ऑफिसर हैं और मैं समझता हूँ इस चीज़ को रोकने में सीएपीएफ की बात जब मैं पार्टिकुलर करता हूँ,
तो जो असिस्टेंट कमांडेंट का है वो रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डायरेक्ट पॉइंट पर्सन हो। आप यदि अच्छे तरीके से बिहेव करते हो, समटाइम क्या होता है कि आपके ऑफिसर ने आपको डांटा, अब उस चीज को आप नीचे ट्रांसफर करते हो। नो, ड्यूटी है उस समय, डिसिप्लिन अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ड्यूटी के बियॉन्ड जो कुछ टाइम होता है उसमें आपको देख रेख करना जरूरी होता है। मैं समझता हूँ, मैं खुद जब गया था तो सीआरपीएफ के संबंध में कुछ कहीं ना कहीं वो चीजें थी कि निगेटिविटी टाइप का आ गया था। लेकिन फिर मैं कुछ ऑफिसर से मिला, वो इतने अच्छे से ट्रीट किए, इतने अच्छे से, कि मुझे लगा कि काश इस प्लेस पे एटलीस्ट मुझे और जगह और टाइम रहने को मिलता तो मैं वहां रहता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लिमिटेड टाइम के लिए वहां मिला, जो भी है 6-7 मंथ के आसपास हमको टाइम मिला। तो वो मैं अपने जीवन का सबसे अच्छा टाइम मानता हूँ। तो सेम सिचुएशन होता है कि सेम ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कुछ ऑफिसर्स जो आपके ऊपर के ऑफिसर हैं वो आपसे अच्छा बिहेव करते हैं, तो लगता है कि काश यहाँ और कुछ दिन रुकते। कुछ ऐसी जगह होता है कि लगता है बस यहाँ से ट्रांसफर हो जाए। तो जो पॉलिसी बनती है वो ऊपर से बनती है, लेकिन एग्जीक्यूट नीचे वाले करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये चीज एटलीस्ट आप इंटरव्यू वगैरह में जो भी जा रहे हो वो जानो। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स है पर्सनल लेवल पे, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या फिर इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे संपर्क कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मैं ट्राई करता हूँ जितना अधिक से अधिक हो सके, मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट जो होती है वो आपके अपने एफर्ट पे होती है। आप एफर्ट लगाओगे तो रिजल्ट होगा, एफर्ट नहीं लगाओगे तो फिर नहीं होगा। ओके, थैंक यू।